الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سنتے ہیں، جن کو بولنا نہیں آتا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل خصوصی سلسلہ ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ایسا سلسلہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری دائیں جانب یہاں بیٹھے ہوئے خصوصی اسلامی بھائی، شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہ خصوصی اسلامی بھائی کیا ہیں، یہ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کا کوئی کاروبار ہے، یہ گورنمنٹ سطح پہ کوئی ایک اونچے سطح پر ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری دعوت اسلامی میں خصوصی اسلامی بھائی ان اسلامی بھائیوں کو کہتے ہیں جو کہ معذور ہیں، لیکن ان کو لوگ پوچھتے نہیں، لیکن الحمدللہ عز و جل ان کا نام یہ رکھا گیا اس مجلس کا خصوصی اسلامی بھائی۔ یہ یہاں پر جو اسلامی بھائی یہ زبان سے بول سکتے ہیں لیکن یہ بول نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے۔ اب ہم دونوں کو ہی کہتے ہیں عید مبارک، ٹھیک ہے؟ پہلے یہاں پر جو ہمارے نابینا اسلامی بھائی ہیں ان تمام عاشقان رسول کو عید مبارک۔ جی ہاں، ان کو ہم نے کہا عید مبارک تو یہاں سے جواب آیا۔ اب یہاں چلتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں عید مبارک اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ عید مبارک۔ دیکھیں بھائی، تو یہاں سے جواب آ گیا خیر مبارک۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہوگا، یوں تو عید کا ہے اسپیشل سلسلہ یوں ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عید منا رہے ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ ان قریب ہمارے سلسلے میں تشریف لانے والے ہیں آپ کے اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ بھی بڑے ایک دلچسپ بات ہے کہ جو اسکرین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کام کیا کرتے ہیں، ان کی مصروفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ بس اسی طرح ہے کہ ان کو تھوڑا جمع کیا، یہ کچھ کام بھی کرتے ہیں یا گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان کا آنا جانا کیسے ہوتا ہے، گزر بسر کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کچھ سے بات چیت کی تو پتہ چلا بعض تو بہت بڑے بھائی بزنس مین ہیں، کچھ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، انہی کی زبانی کچھ سنتے ہیں۔ میرا نام محمد آصف ہے، سرکاری ملازم بھی ہوں اور اس کے علاوہ کرسیاں وغیرہ چیئر ریٹنگ کا کام کرتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ٹیکنیشین تھا۔ ارے واہ، تقریباً مجھے 15 سال ہو گئے آنکھوں کے معاملے کو۔ اچھا، ارے واہ، یہاں سے کون بتائے گا بھائی؟ بتاؤ بھائی کیا کرتے ہو؟ میں کورنگی کے علاقے میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹافیاں بنانے کی کمپنی ہے۔ جمعہ اور اتوار وہاں پر میری 2 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ارے واہ، 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ عز و جل میرا اپنی مچھلی کی دکان ہے، مچھلی؟ اس پر میں کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ مچھلی کی دکان ہے بھائی، تو جائیے ان کی دکان پہ مچھلی کھائیے۔ ماشاء اللہ عز و جل، میں الحمدللہ عز و جل بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ حاجی فضل رکن شورا کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا اور جب پتہ چلا مجھے کہ باپا سے ملاقات اور عید ان کے ساتھ منانے کا وقت ملا ہے، بہت خوش ہوا میں الحمدللہ عز و جل۔ مدینہ بہت خوش ہوا، دل کی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی، کچھ رویا بھی، اور خصوصی اسلام بھائی بھی جب ان کو میں نے بتایا وہ سب بھی بہت خوش ہوئے الحمدللہ عز و جل۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرف جو ہے دائیں جانب ہمارے بیٹھے ہوئے نابینا اسلامی بھائی، ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے، اور بائیں جانب وہ اسلامی بھائی ہیں خصوصی جو سن نہیں سکتے اور جو بول بھی نہیں سکتے۔ کون تشریف لایا ہے؟ نگران شورا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو
امیر اہل سنت کے عنقریب جو صحبت نصیب ہوگی انشاءاللہ. خوب مرشد پاک کی برکتیں لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی ایک معاشرے کے فرد ہیں اور اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی اہمیت ہوتی ہے. ایسا یہ شاہ فرمائیے جو ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، خصوص اسلامی بھائی ہیں، ہمیں جو نارمل اسلامی بھائی ہیں ان کو کس انداز سے ایسے اسلامی بھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ بڑی پیاری حدیث ہے. آپ کے سوال سے ایک حدیث یاد آ گئی. حدیث یہ یاد آئی کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو آدمی یہی غور کرے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اپنے لیے کیا پسند کرتا کہ میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو ویسا ہی سلوک وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی کرے گا. مگر یہاں تو مکس ہے نا. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ چاہے دیکھیں اگر اخلاق کی اور عادتوں کی بات کی جائے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ چاہے آنکھ ہو یا نہ ہو، کان ہو یا نہ ہو، زبان بول سکتی ہو کہ نہ بول سکتی ہو، اخلاق سب کے لیے ضروری ہے. کسی کی آنکھ نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے اخلاق ضروری نہیں ہے. اخلاق اس کے لیے بھی ضروری ہے. کوئی سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیکن حسن اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے. صحیح. کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو حسن اخلاق سے بری و سما کہے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تو ہمارے سب کے اخلاق جو ہے نا وہ سب سے اچھے ہونے چاہیے. جب اچھے اخلاق کی بات کی جائے گی نا تو اچھے اخلاق میں ایک پیاری عادت ہوتی ہے نرمی، جس کا حصہ جس کو جتنا ملا. تو ہمارے پاس نرمی ہونی چاہیے، پولائٹنیس ہونی چاہیے، ہمبلنیس ہونا چاہیے. کہ اگر خدا نہ خواستہ کو ہمارے ساتھ زیادتی کر بھی لے تو اس کی زیادتی کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. آگ سے کبھی نہیں بجھتی، آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے. ناپاک چیز ناپاکی سے دور نہیں ہوتی، ناپاک چیز کو دور کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. میں مانتا ہوں ایک نارمل اسلامی بھائی جو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، چل سکتا ہے، اٹھ سکتا، نارمل ہے، اس کو ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ خصوصی شفقت و محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے. اس کا تو انکار نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ نہیں کیا جاتا. ایک عام آدمی سڑک کے کنارے کھڑا ہے، کوئی جا کر اس کو روڈ پار نہیں کراتا، لیکن جب نابینا کھڑا ہو تو دو آدمی جا کر اس کو روڈ پار کراتے ہیں. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا خالی وہ ڈنڈی سے ٹک 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 کی آواز کرتا ہے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر کہ ایک نابینا، کیونکہ نابینا نظر آ جاتا ہے. اب جیسے جو بول نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے نا، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں، ڈیف یا ڈم ہیں. ان کا آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی شکل پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ بول نہیں سکتا، یا آپ کو تختی لگا کر تھوڑی گھومتے ہو کہ مجھے بولنا ہے، میں بول نہیں سکتا یا میں سن نہیں سکتا. تو ایک عام آدمی شروع میں آپ کو ایک نارمل آدمی سمجھتا ہے. جب نارمل آدمی سمجھتا ہے تو ایک نارمل ایٹیٹیوڈ کرتا ہے. لیکن جب جیسے ہی یہ تو دیکھی ہوئی بات ہوگی، جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز کرتا ہے اور آپ اس کو جب یہ اشارہ کرتے ہو میں بول نہیں سکتا، میں سن نہیں سکتا، وہ پیچھے ہٹتا ہے، تھوڑا سہم جاتا ہے. وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس کا دل نہ دکھا دوں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے نا؟ اسی طرح اگر ہمارا کوئی ایسا اسلام ہے جو نابینا ہے، کیونکہ نابینا پتہ چل جاتا ہے کہ نابینا، ہاتھ میں ڈنڈی ہوتی ہے، چشموں سے آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کبھی بس میں بھی گئے نا، بس بھری ہوئی ہے، ایک عام آدمی کھڑا ہو کر آپ کو سیٹ دے دیتا ہے، نابینا کو سیٹ ملتی ہی نہیں ملتی. تو بہت ہمدردی ہے. ایسا نہیں کہ عام آدمی خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا، اس کو پتہ چل جائے ہمدردی کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اگر ہم ہی اس پر کوئی تجلی ڈال دیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے. مگر نارملی ہمدردی کرتے ہیں، ماں باپ ہمدردی کرتے ہیں، بھائی بہن ہمدردی کرتے ہیں. ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی بہن یا گھر والے ہم سے صحیح بات نہیں کرتے. نارمل بھائی بہن ہوتا ہے، نارمل بھائی بہن جو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سب نارمل ہوتا ہے. ان کے آپس میں بھی
लड़ाई होती रहती है घर के अंदर, वो भी चीजों पे लड़ते रहते हैं, वो भी फरमाइशों और ख्वाहिशों पे लड़ते रहते हैं। तो ये चीज तो घर में रहती है। तो अल्लाह हमें नरमी दे और दिल बड़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाह, बारकल्लाह, बारकल्लाह। अच्छा लगा। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुसूसी इस्लामी भाई अमीर सुन्नत के पास आज 22 रमज़ान मुबारक है और 22 रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला में रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की आज हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों के साथ अमीर सुन्नत के साथ रिकॉर्डिंग करने की, और इनके कुछ सवालात भी होंगे इंशाल्लाह, फिर देखें क्या क्या होता है अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए सुना माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह मदीना मदीना। आपका इमाम शरीफ माशाल्लाह कितना प्यारा है, आपका लिबास माशाल्लाह मदीना 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 है। अमीर सुन्नत की बारगाह मेरा ये सवाल है कि आपने इमाम शरीफ कौन से कलर का पहना है? आपने तो अपना इंडिया दे दिया ना। नहीं, आपने जो ये सवाल किया, आपने ये जो अपनी इजहार किया कि आपका लिबास बहुत प्यारा था, अमीर सुन्नत कौन सा लिबास पहना है? जी, अमीर सुन्नत कौन सा लिबास पहना है माशाल्लाह? नहीं तो फिर आपने पहले जो जुमले फरमाए वो क्या देख के फरमाए? वो ये होता होगा ना कि मुर्शिद जैसा भी जो भी पहनता होगा मुर्शिद अच्छा ही लिबास नहीं तो फिर रंग मुर्शिद ने जो भी पहना अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्शिद ने जो भी पहना माशाल्लाह अच्छा ही पहना अल्हम्दुलिल्लाह। रंग तो पूछ रहे, वैसे यूं है ना, मुर्शिद ने पहना है तो अच्छा ही पहना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मुर्शिद है इमामे वाला, तो मुर्शिद ने इमामा तो पहना ही होगा तो अच्छा ही होगा। जी जी। लेकिन अब पूछ रहे कलर कौन सा, ही बता दो। इमाम शरीफ का रंग, इमाम शरीफ का मुबारक का कौन सा रंग। पहना आपने? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे सर पे सफेद इमामा शरीफ है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इस पर सफेद चादर भी है। माशाल्लाह। लिबास माशाल्लाह कौन सा? लिबास भी सफेद है और ऊपर वो जुब्बा पहना है। जुब्बा कौन से कलर का पहना? ये डार्क कत्थई कलर का है। सफेद ज्यादा मतलब पहनता हूँ मैं। नमाज में खास करके सफेद की कोशिश होती है मेरी। तो हदीस पाक भी है कि सफेद कपड़े इस्तेमाल करो और अपने मुर्दों को भी सफेद कफन दो। फिर वो बहार शरीफ में अपनी तरफ से, वो तो हदीस पाक का मजमून था, फिर बहार शरीफ में सदर शरीआ रहमतुल्लाह ताला ने ये लिखा है कि सफेद कपड़े नमाज में अच्छे, नमाज या इबादत में ये ज्यादा अच्छे बेहतर है। यूं कोशिश होती है कि सफेद लिबास सफेद इमामा, लेकिन मुख्तलिफ रंग के इमामे पहन रहा हूँ। रंगीन कपड़े पहने हैं मैंने, लेकिन थोड़े से सफेद ज्यादा पहनता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। निगरान शुरा की बार में ये सवाल है कि आपने कौन से कलर का इमामा शरीफ? मैंने भी सफेद रंग का इमामा पहना हुआ है और सफेद रंग का लिबास है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आपने कौन से रंग का इमामा पहना है? मैंने येलो कलर का पहना है। इन्होंने येलो कलर का इमामा पहना है। अब मदनी कसौटी, अब इनको कैसे पता चला कि इनका येलो रंग है? ये हैं, इनको कलर पूछने का शायद शौक होगा ना, एक दूसरे को पूछते होंगे बेचारे। हाँ तो ये यूं। मुझे एक नाबीना इस्लामी ने बताया था जो पैदाइशी नाबीना है, जब उनकी विलादत हुई तो पैदाइशी तौर पर नाबीना थे। तो हम कहते हैं ना कि निगरान शुरा मैंने आपकी ज़ियारत की थी, आप तशरीफ लाए थे, इस रंग के कपड़े पहने थे, अमीर सुन्नत की ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो क्योंकि देखा हुआ है तो ख्वाब में ज़ियारत हुई तो पता चल गया ये अमीर सुन्नत है। लेकिन जो पैदाइशी नाबीना है उनका कहना यह है कि हमें नहीं पता चलता कौन आया, तो वो कहते हैं आवाज़ आई है, अमीर सुन्नत की आवाज़ आई थी, तशरीफ लाई थी, आप की आवाज़ हमने सुनी थी। ऐसा ही है भाई, इनको कलर वगैरह के भी नहीं पता कि कौन सा रंग कौन सा है, काला रंग कौन सा है, पीला रंग कौन सा है। ये आप शायद पैदाइशी हैं कि एटमॉस्फेयर से पता चलता है, आवाज़ें आती हैं, इसलिए कि पहले हमारे जहनों में नज़र शक्ल नहीं है किसी की, तो हम सिर्फ आवाज़ों से पहचानते हैं कि हाँ अमीर अहले सुन्नत की आवाज़ है, या इस तरीके से ही पता चलता है। और जो बाद में ब्लाइंड हुए हैं उनको चीज़ों की कलर की पहचान होती है, तो जब ख्वाब आता है तो उनको दिखाई देता है, वो चाहे वो पास्ट की चीज़ें हों, लेकिन उनको पता चल जाता है कि अमीर अहले सुन्नत है या कोई मस्जिद है या पार्क है या बाग है, वॉट एवर कुछ भी,
तो उनको वो नज़र आता है, लेकिन जो बाय बर्थ ब्लाइंड होगा उसको सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान कादरी, बाबुल मदीना, कराची से। अमीर और अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि जो बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, अब उनकी उम्र हो गई है नमाज की, अब मामला ये है कि उनको मस्जिद लाने ले जाने वाला कोई नहीं है, तो शरीयत हमारे लिए इसका क्या हुक्म है, और ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज और ईद की नमाज के बारे में बताइए। जमात तो वाजिब नहीं है, जो ब्लाइंड होते हैं, नाबीना होते हैं, उन पर जमात वाजिब नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कराची बाबुल मदीना का रहने वाला हूँ। आपसे सवाल है कि हमारे वालिदैन और बहन भाई जो हैं हमारे इशारे समझने से कासिर होते हैं, तो हमें इनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सूरत में हम दोस्त यारों के पास चले जाते हैं, बाहर वक्त गुजारते हैं, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? वैसे घर वाले आदी तो हो जाते होंगे, इनके नहीं हुए होंगे, नहीं करते क्योंकि वो घर का आदमी है ना, तो वो कुछ ना कुछ टक्करें मारता रहेगा, तो समझ जाए। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, ये भी साफ बोलता नहीं है, इशारे ही कर रहा होता है, ए कर रहा होता है, तो ये माँ बाप समझ लेते हैं, बाहर ऐसा होता समझ लेते हैं। इनके इशारे भी कुछ समझते होंगे, कुछ नहीं समझते होंगे, तो गुजारा होता रहता होगा। माँ बाप को प्यार दें, मोहब्बत दें, इनके साथ वक्त गुजारें, इनकी दिलजोई हो। ये जो हुक्म दें, काम दें, तो वो करके दें जो आपके बस में हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 सवाल मेरे ज़हन में है जो इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत से पूछने की सआदत हासिल करूँगा। अमीर अहले सुन्नत से ये इस बात का शुक्रगुज़ार हूँ कि मजलिस खुसूसी जो दावत इस्लामी का शोबा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके तमाम ब्लाइंड इस्लामी भाई जितने नाबीना हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब शुक्रगुज़ार हैं कि दावत इस्लामी ने उनके लिए ब्रेल में रिसाले मंजर आम पर लाए, जिसमें एक रिसाला अनमोल हीरे और दूसरा पुर असरार ख़जाना, कि जिससे नाबीना इस्लामी भाई मस्जिद में दर्स व बयान का सिलसिला भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की इस कोशिश के तमाम इस्लामी भाई शुक्रगुज़ार हैं, और अमीर अहले सुन्नत के भी शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने नज़र सानी फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज़ है कि जो मुअत्तकिफ़ इस्लामी भाई 10 दिन के रमज़ान के आखिरी अशरे के जो एतकाफ़ में हैं, अगर खुदा न खास्ता उनसे ऐसा हो जाए कि वो अकेले जा रहे हों, मस्जिद की हद वो क्रॉस कर जाएं, तो उन पर शरई क्या हुक्म लगेगा? और दूसरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि नाबीना इस्लामी भाई जो रोज़ा रख लिया जिन्होंने, अब उनको टाइम वगैरह का मतलब मालूम नहीं है, उनके जहन से मतलब कुछ इस तरह निकल गया, और आसपास कोई साइटेड इस्लामी भाई भी मौजूद नहीं, उन्होंने कोई खाने पीने की चीज़ या खजूर गालिबन अपने मुंह में रख ली, अब खजूर मुंह में रखते ही उसका जायका आ गया, और अब अचानक आज़ान हुई, अजान होने के बाद उसे ये मालूम हुआ कि रोज़े का वक्त जो ख़त्म हो चुका, मुझे पता नहीं था इसका, तो अब वो ऐसी सूरत में क्या करे जबकि साथ में पानी या कोई मतलब कुल्ली करने के असबाब वगैरह मुहैया ना हो? एहतिकाफ में बेख्याली में मस्जिद से बाहर निकल गया मुअत्तकिफ, अब वो नाबीना हो या बीना हो, नाबीना हो या आँख वाला हो, अगर वो बाहर निकल गया तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। तो आँख वाले भी भूल में निकल जाते होंगे, तो नाबीना तो कम निकलते होंगे, तो वो तो एक जहन में होगा ना कि मुझे समझ नहीं आती, भाई इधर जाऊं कि नहीं जाऊं, तो वो डरता होगा। अच्छा, इसी तरह रोजे में भी ये मालूमात करनी जरूरी है। आप लोगों के पास तो वो ब्लाइंड घड़ी देख सकते हैं, पता होता है घड़ी के टाइमिंग, ये वो सब देखने का अंदाज है आपके पास, तो उसी से टाइमिंग मालूम करके कि कितने बजे इफ्तार है, कितने बजे सहरी है, ये सब मालूमात करके फिर अजान पर तो करना नहीं है ना, अजान तो होती ही नमाज के लिए, तो बस वो टाइम के हिसाब से चलना है। नाबीना को भी इसमें ज़रा माफी कैसे मिलेगी? सल्लु अलल हबीब। मेरा सवाल ये है कि हम काम करते हैं, कहीं भी जॉब पर जाते हैं, तो मगर हम पर ना जुल्म किया जाता है, हमसे
काम ज़्यादा लिया जाता है अमूमियों की निस्बत। अल्लाह खैर करे। ये वैसे एहसास से कमतरी की वजह से ऐसा समझते होंगे ये, ने जो इजारा है उसके मुताबिक तो काम करना ही है। और दीगर जो फ्रेश इस्लामी भाई होते हैं उमूमी, बाज सेठ उनसे भी काम ज्यादा लेते होते हैं, वो मजबूरन बेचारे लगे होते हैं, नौकरी मिल नहीं रही, बेरोजगारी है। तो ऐसा इनके साथ भी होता होगा, हर फर्द के साथ नहीं होता होगा, किसी के साथ होता होगा, किसी के साथ नहीं होता होगा। किसी का सेठ रहम दिल होता होगा तो ज्यादा रियायतें देता होगा, खिदमतें करता होगा। तो अगर ऐसा है तो सब्र करें, क्योंकि अब रोजगार भी तो आदमी की जरूरत है। उमूमन जो जिसको पता चल जाए ना कि ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ना देखने वालों का तो पता नॉर्मली चल जाता है कि ये देख नहीं सकते, लेकिन जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उनका फर्स्ट टाइम में पता नहीं चलता, ये एक नॉर्मल नज़र आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पे जो आम आवाम है, पब्लिक है, वो पता चल जाए कि मैं ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उसके लिए हमदर्दी का जज्बा बढ़ता है। और कुदरती तो बताओ कि आम आदमी है ना, ये इनकी बद्दुआओं से भी डरते हैं। ये बद्दुआ देते हैं, दिल टूट जाएगा, गूंगे की बद्दुआ लग जाएगी, तो गूंगे की बद्दुआ ज़्यादा लगती है। ये तो ये भी करते हैं। तो ऐसा उमूमन शायद ना होता हो, और इनको जैसे अमीर ने फरमाया ना कि एहसास से कमतरी, तो इनको ये शुरू से इनको ये फील हो चुका है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही होती होगी। तो आम आदमी पर भी ऐसा नहीं कि वो तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं आम आदमी के। ऐसा वैसे अगर ये जिस तरह अभी बैठे ना, ये इसी तरह बैठा रहा करे ना, और इसी तरह काम करे ना, सेठ इनके आगे पीछे घूमता हो। वो अगले ने ये तो नहीं बताया ना कि हम लोग क्या करते हैं सेठ के साथ। नहीं, इनको पूछो कि जो ये फरमाया है ऐसा है कि नहीं है, खाली हम थोड़ी को मतलब ऐसे खाली गूंगे बेरों की तरह, मतलब ठीक है सिलसिला गूंगे बेरों का है, लेकिन अभी सिलसिला चल रहेगा तो देखने सुनने वालों में इसमें मुशाहिदा ऐसा है कि हमने ऐसे खुसूसियों को भी जानते हूँ मैं पर्सनली, कि जिनकी सैलरी पैकेज अमूमियों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। टैलेंट होगा, एजुकेटेड और पर्सनैलिटी अच्छी होती है और वर्क अच्छा करते हैं, टैलेंट है ना। असल ये करते क्या होंगे जो ये आजमाइशों में आते हैं ना, कि इनको अगर जैसे कि यूं लगता है कि हमको काम ज्यादा लिया जाता है, तो ये सेठ के बारे में दूसरों को बताते होंगे बाज लोग कि ये हमारा सेठ जो है ना यूं करता है, फिर वो सेठ को बोलाते होंगे, ये भी होता होगा। तो फिर ये आजमाइश में आ जाते हो, नौकरी से भी आप दो बैठते हो, क्योंकि ये बेचारे क्योंकि ये बोल नहीं पाते ना, ये साइन लैंग्वेज ज्यादा कर रहे होते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि जिस तरह बोलने का हिसाब है ना क़यामत के दिन फजूल बात का, इसी तरह फजूल इशारों का भी हिसाब किताब है क़यामत के दिन। तो फजूल इशारे भी कम करने, फजूल आवाजें करना, ये भी मतलब इसका भी हिसाब है। फजूल आप करते हैं, ये भी आपकी गुफ्तगू होती है, बोलचाल होती है। ये नाबीना भी हमारे जो इस्लाम पे होते हैं ना, इनमें बाज बड़े गुस्से वाले होते हैं बाबा, और अच्छा इनको गुस्सा उतारने का कोई इधर उधर हाथ आने जाने की जरूरत ही नहीं है, डंडी इनके हाथ में जो होती है ये यूं घुमा डालते हैं ना, ये यूं घुमा डालते हैं, और जो अगला आगे पीछे हो जाएगा, बोलेगा अरे बाबा क्या हो गया, तो उनको गुस्सा आ गया होता है। गुस्सा आता है तो ऐसा इनको ऐसा लगता है जैसे हम बेबस है। भाई बेबस में जो इन्होंने जो अपना बस चलाया होता है ना, तो हमें बस नरम रहना पड़ेगा ना। गुस्सा इनको भी कम नहीं आता होगा। हाँ, इनको उस वक्त आता होगा जब सामने वाला इनकी जबान नहीं समझता होगा, जी बिल्कुल, तो इनकी गुम जाती होगी। इतना समझाया मानता नहीं है, ये समझता ही नहीं। ऐसा होता है अमीर सुन्नत कि इनका कहीं ऐसा मामला तो हो जाते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो अगर लड़ाई झगड़े का मामला हो जाए तो वहाँ इंटरप्रेटर को बुलाया जाता है कि भाई इनको समझाएं, ये काबू में नहीं आ रहे हमारे ना। तो तर्जुमान इस्लामी भाई जाकर इनकी रहनुमाई करते हैं, फिर वो समझ जाते हैं जल्दी। इनमें भी ग्रुप तो होते होंगे, जब इनका कोई झगड़ा होता हो तो ये अपने पूरे ग्रुप को बुलाते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। चोरियां, डकैतियां, बहुत सारे ऐसा बुला लेते होंगे, चलो लड़ते हैं। अच्छा अमूमन ऐसा होता है कि होटलों वगैरह पर बैठने की इनकी बैठक होती है ना, तो कोई ऐसी तरकीब बन जाए ना, होटल वाला इनको भगाने की तरकीब बने, यार इतना टाइम आप लोग बैठ रहे हो, तो उस पर भी तरकीब बना देते हैं बाज़ औक़ात, ग्रुप ना इनका मारा मारी कर देते होंगे। नहीं, दावत इस्लाम वाले नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे कभी ऐसा हुआ है कि इनकी जो इनके पास छड़ी वगैरह होती है उससे किसी को ऐसे कोई तरकीब हो आ जाता है इनको? नहीं, नाबीना से लोग हमदर्दी करते हैं, बहुत हमदर्दी। लेकिन बाज नाबीना जो होते हैं ना,
वाकई बाप के बाप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मुकद्दिम अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से। सबसे पहले तो अमीर अलहसन की बारगाह में ईद मुबारक और निगरान शुरा की बारगाह में भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह जल अमीर अलहसन में पिछली दफ़ा आपकी बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह जल मदी नामद कंप्यूटर बना था और आपने अल्हम्दुलिल्लाह जल बड़ी दुआओं से नवाजा था मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जल कुछ अलकाब भी पुकार थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जल मुझे लोग मदी नामद कंप्यूटर के नाम से जानने लग गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जल जब मैं किसी को अपना नाम बताता हूँ अब्दुल मुकद्दिम अत्तारी, तो लोग कहते हैं आपके नाम के अंदर वज़न है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि वज़न क्यों ना होगा, जिसके नाम से अत्तारी लग जाता है उसके नाम में खुद बहुत वज़न आया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर की ऐसी शान है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर है कि जब तक बिके ना तो कोई पूछता ना था, अत्तार ने खरीद कर अनमोल बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल मैं अल्हम्दुलिल्लाह अत्तारी के सबब से मेरे नाम के अंदर वज़न आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जल लोग कहते हैं आपका नाम में अल्हम्दुलिल्लाह जल जब आप अब्दुल मुकद्दिम अत्तारी के तो आपका नाम अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह जल अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अलहसन की बारगाह में मेरा सवाल है कि गूंगे बहरे और नाबिन इस्लामी भाई, इनको माशरे में लोग इतने अहमियत देते नहीं है। आपका इस तरह किस तरह जहन बना कि इस तरह किस तरह रुझान बना कि मजलिस बनाई गई और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नेकी दावत का काम सर अंजाम देने की तरकीब बनी। बारगाह में इस हवाले से कुछ मदनीपुर इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जैसे कि दावत इस्लामी एक बहुत बड़ी तंजीम है और काफी इस्लामी भाई हैं, तो आइडिया आती गई और ये इस्लामी भाई बनाते गए। कभी मुझसे मशवरा कर लेते हैं, कभी मुझे पता भी नहीं होता और ये लोग कुछ कर लेते हैं। बाइख्तियार मजलिसें बनी हुई है और सबको काम करना है शरीयत के मुताबिक, हिकमत अमली के साथ। ना अपने मुल्क को और किसी मुल्क की सियासत में इंटरफेयर नहीं करना, कहीं हंगामे हड़तालें नहीं करना, ये सब हमारे तो तरीक़ेकार है जो मतलब जिम्मेदारों को पता होते। हम काम करना है बस अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह खुश हो जाए, राजी हो जाए, तो किसी को तकलीफ नहीं। और ये कि शायद ये भी कहा कि मुआशरे में इनको कोई अहमियत नहीं देता, ये भी एहसास महरूमी है, ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि बंदा अपने आप को देखे यार मेरा अपना भी कोई कसूर तो नहीं है। वही कि आप गुस्से वाले हों, किसी को लिफ्ट ना कराएं, कोई बात करे तो सीधे मुंह जवाब ना दें, अब कहाँ यार ये लोग अहमियत देंगे। नाबीना में भी इस तरह की कैफियत होती है, हर नाबीना में नहीं लेकिन होती है। और जो नाबीना मिलनसार और प्यार भरी बातें करता होगा, गीबतें नहीं करेगा और किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की शिकायत नहीं करेगा, तो गालिबन उसको लोग मतलब बहुत मान देते होंगे, दुआओं का कहते होंगे, दम करवाते होंगे, घर ले जाते होंगे, फातिहा खाना नियाज ये खिलाते होंगे। हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाए ना, यकीन माने लोग आपको मोटरसाइकिलों पे छोड़ेंगे, आपको गाड़ियों में छोड़ेंगे, ले जाएंगे, बिठाएंगे, शायद आपको खिलाएंगे पिलाएंगे भी। नहीं, इनमें ऐसे होंगे जो ये तायद करेंगे कि इनको हमदर्दियां मिलती है कि नहीं मिलती है किसी को। जी बिल्कुल। लोग दावतें करते हैं कि नहीं, उर्सों में, फातिहा में आप लोगों घरों में ले जाते हैं ना, खिलाते हैं, कपड़े देते होंगे, रकमें देते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का टिकट मिला कि काश दोबारा चल मदीने की सादत भी मिल जाए। हाय जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह करे कि दिल की आंखें मिल जाएं। और जब आका के सदके जन्नत में आप लोग जाएंगे ना, उस वक्त आंखें रोशन होंगी। जन्नती में कोई ऐब ही नहीं होगा। अब तो हिम्मत रखें, इतनी जिंदगी गुजर गई और भी गुजर गई। सब्र जो है ना, ये जन्नत का खजाना है। अमीर सुन्नत की बारगाह में एक सवाल है, छोटा सा मुंह बड़ी बात, कि अमीर सुन्नत को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की किन किन की ज़ियारत कितनी बार हुई है? बराए करम। मेरे पास बेटे वो आंखें कहाँ हैं? मैं तो दुआ करो ज़ियारतें हो जाए, दुआ करें अल्लाह पाक आपके हुस्न से मुझे अल्लाह बेहतर कर दे। आमीन। अल्लाह पाक आपके सदके हमारे को भी ज़ियारत कराए, आपको भी ज़ियारत हुई काश हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मुबारक। बहुत खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ लाए।
नॉर्मल इस्लामी भाई जो है ईद को एक अच्छे अंदाज से गुजारते हैं, मगर हम घर में बैठकर बोर हो रहे होते हैं, तो हम किस तरह ईद को? ये घर में बैठ के बोर हो रहे होंगे, इनका पर्सनल मैटर होगा, बाकी ये भी सारे बाहर तो निकलते होंगे, ईद की नमाज पढ़ते होंगे, ये आपस में अपने लोगों से मिलते जुलते होंगे, सब कुछ करते होंगे, तफरी गांव में जाते होंगे, क्योंकि वो नहीं है कि जो मतलब है कि हाथ पांव से माजूर, बड़े एक्टिव होते हैं ये लोग। हाँ ए भैया सब कुछ करते हैं ना, यूं करो, यूं हाँ जाते हैं, हाँ बोलो, हाँ बोलने का है। खाते होंगे, माल सब करते होंगे। ऐसे ही होता है, ईद वाले दिन ये एक गैदरिंग सी कर लेते हैं, जमा हो जाते हैं एक जगह खुसूसी। उसका क्या बनेगा सवाल करने वाले का, बेचारे का। नहीं, इनको पूछो कि क्या ये ऐसा नहीं करते? ये तो घर में नहीं बैठते, बोले हम तो ईद को घूम रहे होते। जी जी, दोस्तों के पास जाते हैं, बिल्कुल। हाँ तो फिर क्या घर पे यार, घर पे तो हम जैसा पड़ा होता है यार। अच्छा, इनके पूछे कि इन सबके नॉर्मल दोस्त हैं? जी जी, तकरीबन सबके नॉर्मल दोस्त होंगे इनके। हाँ बाबा सब इनके, ये हमारे जो नाबिना से इनके भी तो होते होंगे। ठीक है। अच्छा ये बताए क्या ये अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ खाने पीने घूमने फिरने भी जाते हो? उमूमी बिल्कुल ऐसे होते हैं इनके। पूछे अच्छा इनके भी होते होंगे? जी बापा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है अब ये सब होता है तो फिर मसला है किधर? कि हमारे खुसूसी इस्लामी भाई हैं जिनमें बाज हैं जो ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। कुछ है कि देख सकते हैं मगर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कुछ ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। अब ईद के दिनों में आम तौर पर लोगों का तफरी का ज़हन होता है, तो इस मामले में हमारा ये जो तबका है इस्लामी भाइयों का, इन्हें ईद का क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए? तो ईद खुशी का दिन है, तो उसमें ईद की नमाज हम पढ़ते हैं और ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। बेशक इसने हमको रमज़ान जैसी नेमत अता फरमाई और इसके बाद एक ईद अता फरमाई जिसमें आम मगफिरत हो जाती है मुसलमानों में। तो ये शुक्र अदा करने का, नेकियां करने का दिन है, खैरात करने का दिन है, न कि सैर व तफरी का दिन, न कि उम्दा खाने का दिन है ना। तो इस तरह मतलब हम अल्लाह की याद में अगर ये दिन गुजारे तो मदीना बरसों तक मेरा तो ये माहौल रहा कि मेरे उस कोई सिक्योरिटी हिफाजती कुछ भी नहीं होता था, तब भी मैं ईद का दिन अक्सर मस्जिद में गुजारता था। असल वो बुराइयां ईद के दिन ज्यादा होती थी। एक तो ये कि जैसे कि वो दुकानों के बाहर, होटलों के बाहर वो बड़े बड़े वो मेज कुर्सी लगाकर बड़े बड़े डेक रखते थे, जोर जोर से गाने बजाते थे। तो मैं बोलता था यार जैसे शैतान आजाद हुआ है तो ये लोग जैसे इस्तिकबाल कर रहे हैं उसका, गाने बजाकर जोर जोर से। और बास कौम में क्या वो खुली जगहों पर वो ढोल पहनकर और वो भंगड़ा नाच घूमते थे। तो ये मतलब तो मैं मतलब मुझे बस अजीब सा लगता था। मुझे रमज़ान शरीफ के जाने का बस वो गम ऐसा होता था। तो मैं फिर क्या वो दिन तकरीबन मस्जिद में गुजरता मेरा, और शाम को मैं बाहर निकलता और फिर कब्रिस्तान चला जाता। अच्छा मुझे कुछ ना कुछ दोस्त मिल जाते थे, हम कब्रिस्तान जाते थे और इस तरह मतलब ये कि फिर कहीं वो खा पी लेते थे, चाय पानी। दावत इस्लामी थी उस टाइम? नहीं, दावत इस्लामी से शायद पहले की बात है। हो सकता है दावत इस्लामी की शुरुआत में भी ये होता होगा, पहले भी होता रहा। शुरुआत में तो इतना वो रश थोड़ी होता था अपने पास। मगर इस तरह के वाकया दावत इस्लामी से पहले के भी हुई है ना? हाँ, दावत इस्लामी से पहले मैं तो जब से दाढ़ी यही रख ली है, मेरा ज़हन तो मजहबी था ना, बहुत पहले से मजहबी था। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद देखी है अल्लाह की रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात को इनको जहन दिया जाता है, खुसूसी इस्लामी भाइयों को, मदनी काफिलों में सफ़र का। तो कुछ खुसूसी इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह नाबीना भी ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़कर फैज़ान मदीना से मदनी काफिले में सफ़र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त तो जितने यहाँ हैं और माशाल्लाह अमीर सुन्नत के साथ ईद के सिलसिला रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस खुशी में सबको मदनी काफिलों में सफ़र की भरपूर नियत कर लेनी चाहिए।
इंशाअल्लाह। और सारे हमारे इस्लामी भाई, नाबीना इस्लामी भाई, खुसूसी इस्लामी भाई, तो सबके सब अगर नियत करें तो मदनी काफिले में सफर की, मदीना मदीना हिम्मत करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अमीर व अहले बरकातहू। सुन्नत में मोहम्मद फुरकान बाबुल मदीना से माशाअल्लाह। अर्ज फरमा रहा हूँ, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बेरोजगार जो हमारे नाबीना दोस्त होते हैं वो मुश्किलात में होते हैं। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग बैग बेचता हूँ बाज़ारों में, तो उनके लिए कुछ मदनी फूल अता फरमाएं, तो वो काफ़ी परेशान हाल। घर के अफराद तो होते होंगे ना आपके, सारे माँ बाप, दूसरे भाई बहन, सभी तो नाबीना नहीं होते होंगे। तो इस तरह अगर अखलाक अच्छा होगा ना नाबीना का भी, हंसमुख मिलनसार, झगड़ालू तबीयत नहीं होगी, गिबतें बुराइयां नहीं करते होंगे, तो घर वाले उनसे प्यार करते होंगे और इनसे इतनी डिमांड नहीं करते होंगे पैसे लाने की, है ना। अपना किरदार अखलाक अच्छा होगा ना, सब मदीना मदीना होगा। अच्छा, अब ये कि वाकई नौकरी तो रखेगा कौन नाबीना को, लेकिन फैक्ट्रियों में और इसी जगहों पे जो हाथों से काम करने का होता है ना, वहां हो सकता है नौकरी भी मिल जाती होगी, या अपनी चीजें बेचने में प्रॉब्लम ये होता है, नाबीना ये बेचते और ये बेचने की आड़ में भीख मांग रहे होते, ये भी होता है। मैं आपको नहीं कहता, लेकिन ऐसा होता है। जैसे वो माचिस ले लिए, और माचिस तो खाली एक सैंपल है, असल वो पैसे खींचने, नाबीना हो, मोहताज हूँ, दुआएं देना, तिलावतें करना, समझे, और नाते पढ़ना, इस तरह करके वो पैसे खींच रहे होते हैं। तो अब नीयत साफ मंजिल आसान, कि वाकई बेच कर ही और कोई देने आए और आप ना लेना कि भाई मैं भीख नहीं मांगता, मैं तो ये बेचता हूँ, आप चाहें तो ले लें और मेरे लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह इस तरह आपका कारोबार चमकेगा और चीज भी सही देंगे और बाजार के रेट पर देंगे। महंगी देंगे तो वजन होंगे कि ये यूं करके इसने मेरे को कतर लिया। तो हिकमत अमली से इंशाल्लाह तरकीब बढ़ेगी। वैसे ऐसी जॉब्स हैं दुनिया में जिनमें सुनने का ज्यादा काम होता है, उसमें देखने का या इतना मतलब कि काम शायद नहीं होता होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा फरीदी है। कहाँ रहते हो? बाबुल मदीना कराची नाज़िमाबाद से मैं हाजिर हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब का कैटरिंग का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह कैटरिंग का काम है, शॉप अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हम सुबह जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे दुकान खोलने होती है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बैठते भी अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे जो साहब होता है ना वो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माली तौर पर मदीना तरकीब है। शॉप आप खोलते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शॉप हम अपना खुद ही खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। निगरानी शुरा से मैं अर्ज़ करता हूँ, बाबा जान से भी अर्ज़ करता हूँ, मेरे घर पे आप तशरीफ़ लाएं, आपको मैं दावत भी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मीठाई भी खिलाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह। पकवान खिलाएंगे? ये नाज़िमाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह। पकवान खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे? कौन बनाएगा? आप बना लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीठा तो बनाने की कोशिश कर लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो नमकीन आइटम होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुकान से ही बनेगा इंशाअल्लाह। हो सकता है हम घर में ही बनवा लें। आजकल मैं क्या खा रहा हूँ पता आपको? ये चर्चा तो होगा इनमें। आप जो फरमाएंगे वही बनवा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो इशाद फरमाएं। पता नहीं होगा यार कि मैं क्या खा रहा हूँ, सुनना तो होगा। आप क्या खा रहे हैं अमीर सुन्नत आजकल रमजान मुबारक में? सुने मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब्जी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। भैया नमकीन में क्या खिलाइएगा? आपको इंशाल्लाह मेमनी बिरयानी खिलाएंगे इंशाल्लाह। मेमनी बिरयानी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो यार दावत तो दी यार, एक ने दी अभी तक खुसूसी ने, किसी ने भी हमको दावत नहीं दी है। हज़रत मीट आपको अपने हाथ से बनाएंगे। हुज़ैफा फर्स्ट नंबर है। हुज़ैफा फर्स्ट हो गया भाई। अव्वल नंबर।
آپ جانشین آپ امیر سنت کی بارگاہ میں سے میٹھا اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلاؤں گا انشاءاللہ. جانشین کو اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلائیں گے. جانشین تو امیر سنت آپ بنا لیں گے اپنے ہاتھ سے, انشاءاللہ کوشش. ماشاء اللہ آپ تشریف لے آئیں. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. چلو حذیفہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. حضرت میں نے آپ سے سنا ہے کیا نام ہے آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ الحمدللہ نیت ہے. نگران شورا بھی جا رہے ہیں. جی دعا کرو کہ نگران شورا صحت و عافیت کے ساتھ آمین آمین. آسانی کے ساتھ ہو جائے. نگران شورا ہے الحمدللہ. امیر سنت اور فضیل بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. ہاں حاجی فضیل بھی ہیں جی اور بھی ہیں, قافلہ ہے پورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کی برحمت ہو. عید مبارک, عید کا چاند مبارک. خیر مبارک. آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. بہت خوش ہوئی آج پہلی دفعہ آپ کو دیکھ کر. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مدنی کسوٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مدنی کسوٹی اگر ہمارے ساتھ ہو جائے. سبحان اللہ. ابھی ہو جائے. ابھی ہو جائے. جیسا آپ فرمایا. عید کسوٹی. آپ نے 11 سوالات کرنا ہے اور 12ویں میں جو ہے آپ نے نام بتانا ہے مدنی فیس کے بعد. اب پہلا سوال جو ہے امیر السنت سے. انسان ہے شخص؟ جی ہاں. کیا وہ ظاہری طور پہ حیات ہیں؟ جی نہیں. انسان ہے مگر ظاہری حیات میں نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کی جو مرادی شخصیت ہے وہ اولیاء کرام میں سے ہے؟ دیکھو ہر نبی کو بھی ولایت تو حاصل ہوتی ہے, ہر صحابی کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے, لیکن بطور ولی میری جو شخصیت ہے مطلوبہ مرادی, وہ بطور ولی ان کی شہرت نہیں ہے, فیمس نہیں ہے وہ اس طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انبیاء کرام میں سے؟ جی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام میں سے ہیں؟ جی ہاں. کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ جی نہیں. رشید احمد عطاری ناروال سے. کیا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں؟ جی نہیں. کیا وہ صحابی نابینا تھے؟ جی ہاں. یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا اور میرے کہ آپ لوگوں کے لیے تسلی ہے. نام بتا دیں. مدنی فیس سنا کر انشاءاللہ دو جل 1 سال تک 3 دن کے ریگولر ہر ماہ کا قافلہ انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا وہ انسان ہے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں. مزار شریف ہے؟ نعم. جی ہاں. کیا وہ صحابی رسول ہے؟ جی نہیں. کیا وہ مزار شریف مکہ شریف کے قریب ہے؟ جی نہیں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مزار شریف مدینے میں؟ جی جی ہاں یہ جی جی. جی ہاں مزار شریف مدینے میں. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا وہ مزار شریف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ جی ہاں. ماشاءاللہ پہنچ گیا. ہو گیا, جواب ہی ہو گیا. ماشاءاللہ. بغیر مدنی فیس کے آپ میں سے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جن کی داڑھی چھوٹی ہے یا نہیں ہے, کاٹ دیے. ارے نابیناؤں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پوری رکھنے کا. دیکھا جائے تو چھوٹی رکھنے کا ان کو فائدہ نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی پوری ہوگی تو مان زیادہ ملے گا ان کو. ایک مٹھی پوری ہو اس کے بعد کاٹیں گے. اور جس نے چھوٹی رکھی یا منڈائی وہ توبہ بھی کرے. اور بھی اسلامی بھائی جن کی چھوٹی ہے وہ اگر ایک مٹھی کر لیں اور توبہ بھی کر لیں. نماز میں ہمیں وسوسے آتے ہیں, اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, قیام میں ہوتے ہیں, وسوسے آتے ہیں تو اس کے متعلق ہم کیا کریں؟ سوال پوچھ رہے ہیں. یہ نماز شروع کرنے سے پہلے لیفٹ شولڈر کی طرف, الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کریں. تھوک نہیں اڑنی چاہیے, پبلک نہ دیکھے اس طرح, ورنہ پبلک کو تعجب ہوگا نا کیا کر رہی ہے, آئیڈیا سے. اور پھر
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये पढ़ लें। नमाज में सजदे की तरफ क़याम में देखेंगे, रुकू में इधर पाँव की पीठ पर, पाँव के ऊपरी हिस्से पर रुकू में, और सजदे में नाक को देखेंगे अपने, और अत्तहियातों में गोद में देखेंगे। ये वैसे भी इस तरह देखना मुस्ताहब है, वसवसे ना भी आते हो तो, जो मैंने देखने का बताया। इंशाअल्लाह वसवसों से बचत होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो ब्लाइंड है नाबीना इस्लाम भाई, अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी जबान और कान यानी कि बोलने और सुनने की सलाहियत वापस ले ली जाएगी मगर आपकी आंखें रोशन कर दी जाएंगी, तो क्या ये सौदा आप कर लेंगे? ब्लाइंड देना मंजूर है? नहीं नहीं, आंखों में आंखें होंगी तो मक्का देखेंगे, मदीना देखेंगे, बगदाद देखेंगे। अच्छा, आपको जबान और कान की सुनने की ताकत ना होने का ज़ाहिर सदमा तो होता है, अफसोस तो होता है। तो अगर आपको कोई कहे कि आपको ब्लाइंड कर दिया जाए और आप बोलना भी शुरू कर देंगे, सुनना भी शुरू कर देंगे, मगर ब्लाइंड हो जाएंगे, नाबीना नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।